میں نے 364 دن کی آپ کو چھٹی دی، معافی دی، نہیں پوچھوں گا 364 دن آپ نے کیا کیا، قرآن کھولا نہیں کھولا، پڑھا نہیں پڑھا، دیکھا نہیں دیکھا، زیارت کی نہیں کی، صرف 10 محرم کا ہی بتا دو اس دن بھی کھولا؟ اللہ کم از کم حضرت اتنا ہوتا کہ امت کو یہ یاد ہوتا آج وہ دن ہے جب امام علی مقام کے سر انور نے نیزے پہ پڑھا، تجھے کوئی نہیں کہہ رہا نیزے پہ پڑھ، تجھے کہا کاری پڑھ، تو نے کر بھی نہیں، تو نے کر بھی نہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ امت کو یاد رہ گئی تو پیاس یاد رہ گئی، قرآن یاد نہیں، امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی۔ اور یاد رکھو بھائی، اگر امام علی مقام اتنے پیاسے ہوتے، اگر امام علی مقام کو قرآن سے پانی سے اتنے پیار ہوتا، اگر امام کو پانی کی اتنی طلب ہوتی، ابن زیاد شمر چھوڑو، میں کہتا ہوں روح زمین کے سارے کافر اکٹھے ہو جاتے، میرے امام پہ قطرہ نہیں، امام کو کوئی نہیں پیاس تھی، امام کو پیاس تھی تو تلاوت قرآن کریم کی ہاں اگر میرے امام کو اتنا پانی پیارا ہوتا۔ اب بھائی میرے امام علی مقام ان نانا جان کے نواسے تھے جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، اگر نیل رک جائے، عمرو بن عاص دیکھیں کیا ہے، ایک بالکل کواری باقرہ حسین و جمیل لڑکی کو بصورت جلوس لے کے جا رہے ہیں، پوچھا ہے کتنے، کہا جی ہر سال نیل رک جاتا ہے، زندہ لڑکی دفناتے ہیں پھر چلتا ہے، فرمایا پہلے کی بات تھی، اب اسلام آ گئے، اب محمد عربی کا دین آ گئے، نہیں ہوگا ایسا کچھ، لے جاؤ اس کو واپس۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، عرض کی حضور نیل میں میں نے یہ دیکھا ہے، پانی رک جاتا ہے، زندہ لڑکی دفناتے ہیں، آپ حکم کریں کیا کرنا ہے؟ فرمایا پہلے تھا 2 خط لکھے، ایک عمرو بن عاص کو، دوسرا دریائے نیل کو، جو دریائے نیل کو خط لکھا وہ کیا تھا، اس کا مفہوم کیا تھا؟ فرمایا نیل جی آپے چلنا ہے تے نہ چل، جی اللہ دے حکم نہ چلنا تے عمر کہندا چل۔ اور حضرت تاریخ کہتی ہے کہ عمر کا چلایا ہوا نیل آج تک نہیں، واہ بھائی واہ، اور کچھ ہو گئے جدیدی جانے جو گئے، میرے امام تے پانی بند کرن والے نہیں، میرے امام نے خود ہی پانی چھوڑ دیا، یہ بات میرے امام نے جیتے بھائی وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، میں اپنے بڑوں کی بات کروں گا، اور ہمیں ہمارے بڑے بتا کے گئے، طاقت دیاں زور نہ ضایا، بیٹھے مل رضائیں، پانی باز پیاسے ٹر گئے دین دنیا دے سائیں۔ واہ واہ، لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو صرف پیاس یاد رہ گئی، امت کو قرآن نہیں۔ جگہ جگہ لگی، میں مخالفت نہیں کر رہا جی سبیل کی، کیمرہ لگا ہو امت کو نماز فتنہ پا دے، میں سبیل کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں جس کی امام کو طلب ہی نہیں تھی، جس کی امام کو ضرورت ہی نہیں تھی، جس کی طرف امام نے توجہ ہی نہیں کی، اور ساری قوم کو وہ یاد ہے، وہ قرآن جو امام نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا، امت کیوں بھول گئی؟ کون کہتا ہے کہ شبیر کو پانی نہ ملا، در حقیقت لب شبیر کو ترسا پانی، منہ چھپے ہوئے پھرتا ہے زمین کے نیچے، کربلا والوں سے ہے شرمندہ کتنا پانی۔ خدا کی قسم ہے نیل منتیں کرتا رہا، امام اشارہ، امام اشارہ، امام آڈر، ایک باری حکم کرو، ارے جدیدیوں کی کیا اوقات ہے، میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں، امام بار بار کہتے رہے جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکون چلے داواں، لیکن دکھ کی بات ہے امت کو وہ پانی یاد رہا، امت کو قرآن کوئی نہیں یاد رہا، امت نے 10 محرم بھی قرآن نہیں کھولے، امت نے 10 محرم کو بھی قرآن ہے۔ حضرت اس وقت میدان کربلا میں طاقت، تصرف، عمر کے لحاظ سے خاندان نبوت میں جو سب سے چھوٹے تھے وہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے بڑوں نے تو ان کے لیے بھی لکھا، وہ کہتے ہیں جتنی دیر امام علی اصغر زندہ رہے، شہادت کا جام نوش نہیں کیا، کسی نے بھی امام علی اصغر کو زمین پہ نہیں لٹایا، کیوں؟ کہ یہ نہ ہو زمین پہ لٹائیں یہ ایڑی رگڑ دے نیچے سے پانی نہ نکل ہے، اللہ، کیونکہ آج طاقت نہیں وہانی، آج ہے دسنا یار دی رضا تے راضی کی بھی رہی رہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے امت کو پانی یاد، امت کو پیاس یاد، لیکن امت کو قرآن، امت کو نماز، امت کو شریعت، امت کو دین نہیں یاد۔ چلیں میں ناروال والوں آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھنے لگا ہوں، آپ نے اس کا بھی جواب دینا، جھوٹ نہیں بولنا جی، آج امام صاحب دی محفل جو بیٹھی ہیں سچ بڑا پسند، لو جی پھر میاں صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں سیخاں تے مکھن پکانے ڈاڈا اوکھا کم ہے،
बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन का काम। ठीक हो गया, पता लगा कि कुर्बानी किसके लिए हुई जी? दीन के लिए। फिर किसी ने लिखा, वो कहते हैं कत्ल हुसैन असल में मरग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। ठीक है जी। फिर नारोवाल वाले सच दसियो, तुसी कभी किते नारोवाल च इस्लाम वेख्या? किसी बाजार च लभा हुआ इस्लाम? मैंने भी सियालकोट भी नहीं देखा। उस दिन मैं पिंडी गया था, उधर भी नहीं देखा। उस दिन लाहौर गया था, उधर भी नहीं देखा। उस दिन मुल्तान गया था, वहाँ भी नहीं देखा। रमज़ान में कराची गया था, वहाँ भी नहीं देखा। सखर गया, नहीं देखा। एबटाबाद गया, नहीं देखा। भावलपुर गया, नहीं देखा। वो सच दसो यार, वो दीन जिसके लिए 72 कुर्बानियाँ दी गई है किधर है जी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सबील थी, बिरयानी थी, नान था, हलवा था, खीर थी, हलीम थी। दिन किधर है? कितने दीन है? शादियों में नहीं, यूनिवर्सिटियों में नहीं, कॉलेजों में नहीं, बाज़ारों में नहीं, मोहल्लों में नहीं, मेरे जिस्म पे नहीं, मेरे मुंह पे नहीं, मेरे सर पे नहीं। किधर है? बताओ तो सही है। जिस दीन के लिए अली अकबर, जिस दीन के लिए अली असगर को दसो कितने रहे यार? हलीम थी, दीन है। मैं तो आज आपसे पूछ रहा हूँ, मोहम्मद बख्श बड़ी देर पहले इसका जवाब दे गए। वो क्या कहते हैं? दीन नबी दावाम यतीमा दर दर तक के खावे। कोई हजरत अब इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं। बुलाते हैं? दसो भाई नारोवाल वालों, बुलाते हैं हम अपनी शादी पे दीन को? हम तो खुद से बुलाते हैं। हम तो कंजरियाँ बुलाते हैं, इस्लाम को कौन बुलाता है? हम अपनी बारात पे इस्लाम को बुलाते हैं? हमने तो फौजी बैंड बुलाया होता है। दूल्हे के आगे आधा घंटा उसके यारों ने भंगड़ा डालना होता है। फिर बाजार पे खड़े होके ये बच्चियाँ, ये लड़कियाँ गैर महरमों पे फूल फेंकती हैं। अंदर डीजे बजता है। औरतों में मर्दों में कोई पर्दा नहीं होता, हर तमाशबीनी होती है। और पता है सबसे बड़ा जुल्म हम क्या करते हैं? शादी शुरू से होने से लेकर दुल्हन की रुखसती तक किसी को कुरान याद नहीं आता। जब दुल्हन रुखसत करने लगती हो, कुरान निकाल लेते हो। उस वक्त कुरान भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता होगा, या अल्लाह कैसे है ये? खुसरे बुलाए, किसी को मैं नहीं याद आया। कंजरियां बुलाई, किसी को मैं याद नहीं आया। डीजे बुलाया, किसी को मैं याद नहीं आया। फौजी बैंड बजा, किसी को मैं याद नहीं आया। लड़कियों ने खड़े होके गैर महरमों पे फूल फेंके, मैं किसी को याद नहीं आया। मैरिज हाल में औरतों और मर्दों के दरमियान कोई पर्दा नहीं था, मैं किसी को याद नहीं आया। हर कंजर खाना किया गया, मैं किसी को याद नहीं आया। बोटी टोरन लगे, मैं याद आ गया। बताओ किधर है इस्लाम जिसके लिए इमाम अली मुकाम ने सारा कुछ कुर्बान कर दिया? किधर है इस्लाम? तो मियां साहब 100 साल पहले जवाब दे गए। आप फरमाते हैं दीन नबी दावाम यतीमा दर दर तक के खावे, कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़ा सीने लाए। चस्के लग रहे हैं। तुसी एडा ही सस्ता सौदा है, एक सबील ते मुका छड़े। 4 मन दुध ला के तू अपने आप को धूते खां समझ बैठा। उत्थे बच्चे कुर्बान होए ने मियाँ, 4 मन दुध ना नहीं हुआ सौदे लभदे आंदे। वो भी तू सारा साल पिया ढोल पिटना, मैं 4 मन दुध लाया सी। इतना सस्ता सौदा है ये? 4 मन दूध से मिल जाएगा तुझे। जहाँ दी हुई तो उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। इतना सस्ता सौदा नहीं है ये। नहीं दीन, जब तक दीन था, जब तक दीन था। स्पेशल बेटियाँ बैठी हैं। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात का विशाल हो गया। सारे मामा वाले बैठे हैं, कितना क्लोज रिश्ता होता है। और हमारे कल्चर में हमारी पंजाबी माएँ अगर कोई दुपट्टा शुपट्टा नहीं ना उड़ा हुआ तो बेटा आ जाए तो हमारी माएँ को इतनी परवाह नहीं करती। अल्लाह करनी चाहिए। अगर कह देना तो अगू झिड़का भी देश है, ऐडा तो मौलवी आ गया, हूँ तेरे के दुपट्टा लावा, ऐसे झोली से सौंदा रही, इसी सीने से 2 साल तूने गजा ली है, ऐडा तो मौलवी आ गया। लेकिन कुर्बान जाऊँ इस्लाम वाली माँ जी। हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं
मेरी अम्मा जान सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो गया। लेकिन आप फरमाते हैं बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद कभी ये नौबत ही नहीं आई मैंने अम्मा फातिमा के सर पाक का कुबाल देखा हुआ है। दीन नबी दावान यतीमा दर दर तके सबील लान तैयार ये वाली झंडियाँ लाने कोई नहीं तैयार थी। और मैं जितने बच्चे बेटा मैं पहले कह रहा हूँ बात को आपने दूसरी तरफ लेके नहीं जाना, सबील लगानी है। लेकिन पता है इमाम अली मुकाम क्या फरमा रहे हैं, नौकरान दा नौकर वो फरमा रहे हैं वो सबील तो तूने 10 मुहर्रम को लगा ली, तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है? तू मेरे नाना जान की आँखें नहीं ठंडियाँ की थी, देख तो तूने पका ली, लेकिन तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। जी कोई बंदा उठ के खड़ा हो और बताए मुझे मैदान करबला में भी अहले बैत वालों का कोई एक सजदा रह गया हो तो बताओ उठ के मुझे। उससे भी ज्यादा कोई सख्त दिन आएगा, वो 72 वो हजारों में कोई सजदा नहीं रहा, बल्कि कुर्बान जाऊं इमाम अली मुकाम ने तो जामे शहादत भी सजदे में नोश किया। लेकिन दुख की बात वही है जिधर से मैं खड़ा हुआ था मैं भी उधर ही, उम्मत को बहुत प्यास याद रह गई, न सजदा याद रहा न कुरान याद। फिर मैं वही कहूँगा जो इकबाल ने कहा था, आज़ां रह गई रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली। मैं आप सब बच्चों से कहूँगा जी 12 मिनट रह गए, मेरा सस्ता सौदा कर लो। औखे सौदे वो कर गए सारे, अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। कौन सी बस्ती वसाई ताजराने भाई तेरे को किसी ने पुत्र मंगे, तू है भी नहीं देने जोगा, तुझसे किसी ने भतीजा मांगा, तुझसे किसी ने भांजा मांगा, तुझसे किसी ने भाई मांगा। अल्लाह ने मांगा भी उन्हीं से था जो दे सकते थे। तू तो 5 नमाज़ां पूरियां कर लें बड़ी गल, तू 5 पूरियां कर लें बड़ी गल, तेरे को वह भी नहीं होने, तेरे को तो मंगे एक। मेरे महबूब वो महबूब है जिनके लिए इमाम आले सुन्नत लिखते हैं। आप फरमाते खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इस अंदाज से जलवगर थे। दाई जानी हज़रत सैयदना इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाई जानी बाप के लख्ते जिगर हज़रत सैयदना इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, सलाम आया और सलाम के साथ पैगाम आया, महबूब एक पासे नवासा है, एक पासे लख्ते जिगर है, एक रख लो एक दे दे, एक रख लें एक दे दें। मेरे महबूब ने इमाम अली मुकाम को भी देखा, मेरे महबूब ने अपने लख्ते जिगर हज़रत इब्राहीम को भी देखा। फरमाया जिब्राईल जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करना हुसैन रख लिए इब्राहीम दे दिए। लिखा 3 दिन के बाद हज़रत इब्राहीम का विसाल हो गया। वो लिखा उसके बाद जब भी इमाम हुसैन अपने नाना जान की बारगाह में आते तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ये कह के इस्तकबाल फरमाया करते थे, मरहबा है वो आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजरान आले बैत, इश्क में क्या लुटाइए इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर है। सोखा सौदा सोख है मियाँ कर लो, वक्त जाता जे सौदा सोख है माशा सौदा सोख है कर लो। ये वक्त जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारी ख़त्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत, ज़ीनतुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अल हाफिज़ मोहम्मद इमरान आसी नक्शबंदी चुराही मुजद्दिदी सियालकोटी दावत बरकातुहुल कुद्सिया खलीफा मजाज दरबार आलिया चूरा शरीफ खतीब आज़म सियालकोट आप दी तशरीफ आवरी हुई। मैं दिल दिया था कि आइए वेलकम करूँगा किबला मिसबाह साहब किबला दावत बरकातुहुल कुद्सिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सौदा सर सोखा सोखा सौदा है, अल्लाह यारी सौखी नहीं जी। तो देख सी गल मुकाऊगा ना यारी सौखी नहीं जी है। मैं हजरत एक दिन किबला की शादी बारगाह चर्ज की थी ना, हुजूर को इश्क इरशाद फरमा
जोड़े अंदाज सी उन्हें फरमान लगे मौलवी रोटी छोटी खाया कर इश्क का नाम ही ना नहीं है। ये तो लफ्ज़ बड़े सस्ते हो गए, जुमले बड़े सस्ते हो गए। हमने तो इश्क का जनाजा निकाल दिया है। सिर्फ वो एक लफ्ज़ है, एक कैफियत है, बोल नहीं सकता। अगर अल्लाह उसको ज़ुबान दे देना वो चीख चीख के कहे हो तुम सारे झूठे हो, हुसैन सच्चा है। इश्क बच्चों का खेल है। सारी रात सोना टका के रोटी खानी तो दावा इश्क का करना, ना इश्क में सोना ना इश्क में खाना है। मियाँ इश्क कहता है ये मेरे अल्लाह आने तो पहले सुन लेना, सौन दूंगा ना खान दूंगा। हाँ जरा सैयदा कायनात खुद फरमाती हैं, फरमाती मैंने 4 रोटियां बनाई। कितनी जी? और कितनी जी? कब बोले तो करो यार कम से कम। 4 रोटियां हैं जी। मैं सवेर तू लैके हूं तक खाधी रोटी है। फिर इस घर में कितनी रोटियां बनी? 4। इस घर का सदका सारे खा रहे हैं। आप फरमाती एक रोटी मौला मुश्किल कुशा, एक रोटी इमाम हसन मुश्तबा, एक रोटी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते पहले उनको खिलाई, तीनों ने अपनी अपनी रोटी खा ली। आप फरमाती जब मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं है। ऐसा कोई महबूब होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। क्या क्या नहीं मिलता दो जहाँ को तेरे दर से, एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं। अब फरमाती मैंने अपनी रोटी का आधा थोड़ा सा सालन रखा, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। वो महबूब जो मदीना बैठ के अर्शों की खबरें दिया करते थे, वो रोटी दे के पूछते हैं फातिमा ये क्या? अर्ज़ की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम 4 रोटियाँ बनाई थी। एक रोटी हज़रत अली, एक रोटी इमाम हसन, एक रोटी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चौथी मेरी थी। तीनों अपनी अपनी खा चुके। जब मैं अपनी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं। ये अपनी रोटी में से आधी रोटी लेके आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ, कबूल फरमा ले। लिखा हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए तेरे बाबा के पेट में कोई लुकमा भी नहीं गया। इतने रज़वी साहब रह गई रोटी गई, बल्कि क्या होता है दुख होता है देखते। चौथा प्रोग्राम रज़वी साहब हर महफल लैंड है चोलों का एक छापर लैन लिए इस कौम ने सारा कुछ ही भूल जाना। मस्जिद का तकद्दुस, महफल, ज़िक्र मुस्तफ़ा, इंसानियत, सब कुछ। वो चाँद पे चले गए, वो मरीख पे दुनिया बसाने की बातें कर रहे हैं। और हमारा आज भी ये हाल है कि चावलों का एक छापर लेने के लिए हम आज भी एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। मेरे महबूब ने तो रोटी माल के कुनैन होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे पत्थर बांधे ताकि कल को मेरी उम्मत रोटी के लिए ज़मीर न बेचे। आज शराब है ना, पूरी फेसबुक भरी पड़ी है, सारे हुक्मरानों का रोना रो रहे हैं। लेकिन हज़रत जी सिर्फ चंद दिन गुजरने की बात है, यही हुक्मरान आपके पास आएंगे वोट मांगने। कोई इनसे नहीं पूछेगा जब बलोचिस्तान डूब रहा था तू किधर था, जब वजीरिस्तान डूब रहा था तू कैनेडा मामा बन के गया था, जब तोनसा डूब रहा था तू किधर था, जब हैदराबाद डूब रहा था तू किधर था। हम वही लोग हैं अभी फेसबुक पे हुक्मरानों को गालियां दे रहे हैं, अभी फेसबुक पे उनके कीड़े निकाल रहे हैं। यही हुक्मरान जब वोट मांगने आएंगे, एक शामी कबाब पे, एक चाय के कप पे, एक बिस्किट पे, एक चावलों के डब्बे पे आप फिर इन्हीं को वोट दोगे। किसी को नहीं वजीरिस्तान याद रहेगा, किसी को हैदराबाद नहीं याद आएगा। एक एक रोटी पे हम फिर बिकेंगे, जमीर बेचेंगे, ईमान बेचेंगे, पाकिस्तान बेचेंगे, पंजाब बेचेंगे, बलोचिस्तान बेचेंगे, सिंध बेचेंगे, कैफी के बेचेंगे। लेकिन वह माल के कुनैन होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे 2-2 पत्थर बांधे ताकि कल को मेरी उम्मत रोटी के लिए ना बेचे, लेकिन बेचते हैं। सारी फेसबुक खोल के देखो, सारी कौम पूछती पई है कि हुक्मरान किधर है, हुक्मरान किधर है। और मामा जी तू वोट मांगना आके वो भी पूछियो ना, जब वजीरिस्तान डूबा था तू किधर था, जब हैदराबाद डूबा तू किधर था। फेसबुक पे जब तस्वीर चढ़ी बंदा सारे का सारा मट्टी में था, सिर्फ हाथ बाहर रह गए, तू किधर था। बकरियां गई, भैंसे गई, बंदे गए, औरतें गई, तू किधर था। फिर वही होगा, एक रोटी पे हम बिकेंगे, कोई नहीं पूछेगा। फंस गई उम्मत रोटी में। लेकिन वहाँ क्या है, माल के कुनैन होने के बावजूद फरमा रहे हैं फातिमा 4 दिन लग गए तेरे बाबा के पेट से कोई लुकमा भी नहीं गया। खुदा के बंदों को होश करो,
खुदा के बंदो कोई होश करो यार, 75 साल हो गए, कब होश नहीं होगा यार। मेरे महबूब ने तो फरमाया मोमन एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता, किन्नी वरियाणा को डग खानी चाहिए है? सारी कौम फेसबुक पे चिल्ला रही है कितने ने हुक्मरान, जदू आंदे ने उदू क्यों नहीं पूछते कितने से तुसी? तब तो चाय के कप किसी को नहीं बलोचिस्तान याद आएगा। इस वक्त सारे मामे बने हुए हैं बलोचिस्तान के, बड़ी तुम्हें उनकी तकलीफ, तब किधर जाओगे तुम? पूछना ना उनसे। और याद रखो जी, जितनी देर तक तुम नहीं पूछोगे पाकिस्तान नहीं बदलेगा। हाँ जी, जब सिस्टम ठीक चल रहा था, पता क्यों चल रहा था? क्योंकि वो हजरत उमर को भी पूछ लिया करते, सिर्फ लीडर नहीं। मैं ये हदीस 1000 वास्तों से सुन के आपको सुना रहा हूँ, लेकिन उस वक्त सामने वो लोग बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफ़ा से सुना मेरा उमर वो है, इसको देख के शैतान भी रास्ता बदल जाता है। सामने वो बैठे थे जिन्होंने जुबान मुस्तफ़ा से सुना मेरे उमर की नेकियां तारों से भी ज्यादा हैं, उनको पता था उमर मुरादे रसूल हैं। दरबार लगा है, हजरत उमर बैठे हैं, एक बंदा उठ के पूछता है हजरत यो ही सूट है जरा मैनू भी मिलया तानू भी मिलया, मेरा कद छोटा है, बड़ा औखा सूट बने हैं, जनाब का कद उच्चा है, जनाब का किमें बन गया? फिर मैं जवाब मेरा बेटा देगा। साहबजादा सब उठे, का बिल्कुल बात ठीक है, जितना तुझे मिला अमीरुल मोमिनीन को भी मिला, तेरा मुश्किल से बनान का तो बन ही नहीं सकता था। फिर हुआ क्या, मैंने भी अपना सूट अमीरुल मोमिनीन को पेश कर दिया, 2 सूट मिला के आपका सूट बनाया है। अज सारे फेसबुक पर रोन डे जी कितने ने जो इलेक्शन होने ने खाने तड़ जो एक नहीं बोलना, तुसी शामी कबाब ते तुसी चार, मेरा किसी कोई सियासी सूसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह इतना इन MNA MP से मेरा प्यार है, आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन प्यार अपनी जगह, ड्यूटी है मुस्तफ़ा अपनी, प्यार अपनी जगह, नौकरी मुस्तफ़ा करीम की। कोई नाराज होता है तो 1000 बार हो, हजरत हम उनकी नौकरी करते हैं, इनकी कोई नहीं करते हैं। जितना मेरा इनसे प्यार है आप सोच भी नहीं सकते यार, लेकिन हजरत जी प्यार अपनी जगह, ड्यूटी। इसलिए पुत्र ये छोड़ो फेसबुक पे सारे हीरो बनना, इस वक्त आपके बलूचिस्तान को आपकी ज़रूरत है, उठो। आपके सिंध को आपकी ज़रूरत है, पुत्र उठो, अपना अपना रोल प्ले करो। वो बताओ हुसैन, हाँ मैं आखिरी गल खत्म जी, ये है हुसैनियत, लेकिन ये हुसैनियत की बुलाई अब किताबों में, ये हुसैनियत अब किताबों में। कोई आखिरी गल बात खत्म, शाह साहब ने कौन फरमाया तो 2 मिनट रहेगा मेरे। लिखा जब हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ ना, और गुस्ल देने के लिए आपके जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया, तो लिखा है इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुश्त मुबारक पे ना बाकायदा निशान था जी। आपस में बातें शुरू हो गई, ये तो शहजादे ने, ये तो शबीह मुस्तफ़ा है, ये तो गुलशन फ़ातिमा का महकता हुआ फूल है, ये तो याद अली है, इनसे तो हज़रत अली की खुशबू आती है, ये तो सैयद है, ये तो सरदार है, ये तो सवारी भी महबूब खुदा के मुबारक कंधों पे किया करते थे, इनकी पुश्त पे किस चीज़ का निशान है? गुलाम पास खड़ा था, रो पड़ा, कहा समझ नहीं आ रही क्या करूँ, इमाम ने मुझसे वादा लिया था कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन अगर ना बोलूँ तो तुम्हारे दिल में पता नहीं क्या क्या आएगा। सुनो फिर बात मेरे इमाम की शान में शौकत की है, ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में मेरे इमाम अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। सच बताओ यार, कितने गया वाला इस्लाम है भी कितने? हूँ तो दरी जी नहीं तेरा चाचा कैमरा नहीं लगेगा, किसी माड़े को आधा किलो आलू नहीं देने तैयार है, किधर है ये? मैं इसी पर बात ख़त्म कर दूँगा। किबला मेरे मसलक की बाहर हैं, ऐसी साथ दिलों की तार छेड़ते हैं, यही तो सड़े वाले लोग हैं। क्या दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक खा। याद रखना पुत्र, असी भावें कसम चुक बैठे हैं कि करनी ताड़ी खुशामद है, लेकिन हुसैन ने कल पूछना है क्या किया तूने इस्लाम के लिए? मैंने तो अली अकबर दे दी, मैंने तो अली असगर दे दी। पुत्र देखते गल नहीं मुकनी, मियाँ एडा सौखा सौदा कोई नहीं है, तुम सबीला ला के वेले हो सारे, एडा सौखा सौदा नहीं है। पूछेंगे कल तुझसे, मैंने अली अकबर दे दिया, तूने क्या दिया? बता ना तूने क्या दिया है? देख पका के वेला हो गया। मेरा अली अकबर तेरी देख से बड़ा कीमती था, मेरा अली असगर तेरी देख से बड़ा कीमती था।
मेरा कासिम यादगार हसन था, तेरी देख से बड़ा कीमती था, तूने देख पे सौदा मुका दिया। पुत्र जवाब देना उधर। ये जो हम आपको स्टेजों पे सुना रहे हैं कि उसे जाने हैं फरिश्तियां ने BMW लैके खलोते आना, कुछ नहीं होना है जुदा, बल्कि इधर समाम फतारत वैदल कवाकिबुम तसरत वैदल बिहार हुज्जिरत वैदल कुबूर बुसिरत आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जवाब देना पड़ेगा। मेरे कीम साहब कहा करते थे, अल्फ आया सैतू लाल खरीदने नूं, 5 कोलियां दा गले विच पा बैठो, ओए तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नूं, टेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्लाह ओ सानू की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा काटे पा बैठो। वमा अलैना इल्लल बल